السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم خصوصی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے انتہائی زبردست اور دبنگ صحافی گور سیال صاحب کے حوالے سے کہ جن کو گزشتہ چند دنوں پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جوڈیشل کمپلیکس آمد کے موقع پر۔ غالباً ایک ہفتہ پہلے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور دہشت گردی کے مقدمے ان پر بنا دیے گئے تھے بلا وجہ، نہ کوئی وہ اپنی وہاں فیلڈ میں کام کر رہے تھے، اپنی کرائم رپورٹنگ کر رہے تھے اور ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے، جس پر صحافی عمران ریاض صاحب اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، تمام تنظیموں نے، ہیومن رائٹس موومنٹ نے، ہر مکتبہ فکر نے یکجہتی دکھائی۔ اور گور سیال صاحب کیونکہ اپنا فیلڈ میں کام کرتے ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، آگ دکھاتے ہیں، تو تمام صحافی برادری نے یکجا ہو کر اس کو کنڈیم کیا اور اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے وہ صحافی بھائی، ہمارے بہت زبردست دوست بھائی کولیگ آج ہمارے درمیان بھی موجود ہیں سچ کی تلاش کے لیے، خصوصی آج انہوں نے وقت بھی دیا ہے۔ گور صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنا قیمتی وقت دیا، اور پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کامیابی کے ساتھ واپس آئے ہیں اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحافیوں کی آواز کو کسی صورت جو ہے ڈرا دھمکا کے جو ہے بند نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے دن رہے آپ کے جیل میں اور کیا کہنا صاحب، چاہیں آپ نے گے؟ یہ کمنٹ کیے اور میرے بارے میں یہ پوچھا، اور یہ آپ کا جس طرح سے آپ لوگوں نے میرے لیے حق اور سچ کی آواز پیچھے بلند کی، اور ان نصوروں، ان چوروں، ان چکٹھوں اور ان لوگوں کے لیے آپ نے جس طرح سے بھرپور پریکٹس کی، اور سردار صاحب یہ آپ کو پریکٹس میرے لیے بار بار کرنی پڑے گی، اور یہ قرض میں جو آپ میرے اوپر چڑھا رہے ہیں یہ آپ کا قرض بڑھتا جائے گا جو میں کبھی چکا نہیں پاؤں گا۔ تو یہ حق اور سچ کی آواز جو ہے یہ آپ کو دنیا کائنات کی تخلیق اور اس دنیا کی تخلیق کے ساتھ حق اور باطل کی جو جنگ ہے، جس کی سب سے بڑی جو قربانی کربلا کی ہسٹری بتاتی ہے کہ حسین پاک کو کوئی، آپ دیکھیں گے تو حسین علیہ السلام جو ہے، حسین علیہ السلام، وہ ان کو کوئی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان کو تخت کی ضرورت تھی۔ یزید تو کہتا تھا کہ آپ تخت لے لیں، لیکن جو حق اور سچ ہے نا، اس کی مثال آج بھی دنیا اس کے اوپر قائم و دائم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو سردار صاحب یہ آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ جو زمینی فرعون بنے ہوئے، یہ فرعون و یزید بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف حق اور سچ جو ہے وہ دکھانا پڑے گا۔ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ جی یہ جو آئینہ ہم دکھاتے ہیں ان کا بھدا اور بگڑا ہوا مکروہ چہرہ، یہ ہم دکھاتے رہیں گے اور اپنی 24 کروڑ عوام کو اسی کے ساتھ ان کا بگڑا ہوا بھدا چہرہ یہ دکھاتے رہیں گے۔ بیسیکلی یہ آئینہ میں اپنا جو چہرہ دیکھتے ہیں اس سے تو یہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو کسی صحافی کا آئینہ جب اس کو دکھاتا ہے تو وہ اس آئینے کو توڑتے ہیں۔ یہ جو ہمارے آئینے توڑتے ہیں، ان کا یہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر حق اور سچ کی آواز دبنی ہوتی تو کربلا کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ کیا حسین علیہ السلام کی جو قربانی حق اور سچ اور باطل کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونا، کیا آج وہ بند ہو گئی ہے؟ کیا آج وہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، آج بھی دنیا ان کے مشن کو سلام کرتی ہے۔ تو یہ ایک ہماری تنظیموں کا، آپ جیسے نوجوانوں کا، باقی دیگر جتنے مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کا، جتنے لوگ مجھے مل رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے، اور میں اس سے بڑھ کے جو ہے اس مشن کو رکھوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ گوہر سیال کو آپ ایک ڈیفرنٹ اب صحافی پائیں گے۔ میں پہلے بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں سب سے پہلے انسان ہوں اور میرے اندر ہیومنٹی ہے، اور بعد میں صحافی ہوں۔ مجھے جو دکھتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ گور صاحب، کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو جیل میں دن گزرے تو کیا آپ پر تشدد وغیرہ تو نہیں کیا گیا؟ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی کارکنان کو یا سیاسی لیڈران کو جب پکڑتے ہیں، اڈیالہ جیل میں آپ مقیم تھے، تو کیا کسی قسم کا تشدد پولیس کی جانب سے یا کسی بھی فرد کی جانب سے تو نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، کسی قسم کا میرے اوپر تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ جو رمنا پولیس کے ڈیوٹی آفیسر تھے انہوں نے بہت زیادہ مجھے اکوموڈیٹ کیا، ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے جتنی دیر میں ان کی کسٹڈی میں تھا، انہوں نے اپنے آفس میں رکھا، میرا کھانا پینا
चाय कॉफी का बंदोबस्त करते रहे। मुझे 2-3 पहले दिन बुखार था, उस टेम्परेचर में इमरान खान की जो आमद थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए, उसमें मैं उनको कवर करने के लिए आया हुआ था। तो अपनी फराज़ ड्यूटी जो मेरी थी जर्नलिज्म की, वो मैं अपनी पूरी कर रहा था। तो दौरान कवरेज के दौरान ही उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, और तब तक पाकिस्तान में पुरअमन था, पाकिस्तान में सुकून था। सुबह 10-11-12 के करीब पाकिस्तान में पूरा अमन था, किसी किस्म का कोई दहशतगर्द नहीं बना था। और उस टाइम मुझे गिरफ्तार किया जब मैं आपने इस दहशतगर्द जो कैमरा है जो मेरे इस वक्त हाथ में है, इसी दहशतगर्द कैमरे के जरिए मैं दिखा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त तरीन इंतजाम हैं। तो शायद ये उनको ये चीज बुरी लगी होगी कि ये सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम क्या है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जब उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद मुझे थाने ले गए, तो किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। हाँ, अनफॉर्चुनेट ये है कि ये बहुत बड़ी गलती की इन्होंने हमें अरेस्ट करने के बाद। आप जैसे नौजवान जब इनके खिलाफ आवाज उठाई, आईजी को भी अपने इसकी सर की पड़ी हुई थी, जो नीचे जितनी पुलिस है उनको भी अपनी सर की पड़ी हुई थी कि हमने क्या कर बैठे हैं। लेकिन बदकिस्मती है सरदार साहब, उस टाइम मुझे सारी जो है वायरलेस कॉल के जरिए मैं इंफॉर्मेशन लेता रहा, और मुझे बताया गया था कि इमरान खान को आज जब वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप इधर ही बैठेंगे तो इसी कुर्सी के साथ आज इमरान खान भी आपके साथ अरेस्ट होके आएंगे। तो मैंने कहा कि यार क्या आप क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमने प्लान किया और ऊपर से बहुत सख्त ऑर्डर है, और ऊपर वाले लोग ही आज इमरान खान को गिरफ्तार करके आपके साथ कुर्सी पे बैठे होंगे। तो आप इमरान खान के साथ गिरफ्तारी के साथ आप आज बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के पास है। इमरान खान बहुत बड़ा नाम है और मुझे उसके साथ बैठ के गिरफ्तारी का कोई शौक नहीं है। मुझे ये बताएं कि मेरा जुर्म क्या है। तो जुर्म पूछने के ऊपर तो आगे उनका कोई जवाब ना आया। खैर ये एक अलग स्टोरी है, इसको डिबेट को बहुत लंबा जितना बोलूंगा उतनी लंबी हो जाएगी। जो जेल का सफर रहा तैयब, वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। मुझे डेथ सेल में रखा गया, मौत की चक्की में मुझे 7 दिन रखा गया, और बड़े फखर से वो बताते रहे कि ये वही चक्की है, सेल डेथ सेल 3 चक्की नंबर 2। यहाँ पे शहबाज गिल साहब ने जो है वो वक्त गुजारा, इसी डेथ सेल में उसे रखा गया। नवाज शरीफ को इसी डेथ सेल में रखा गया, और मुझे बड़े फखर से बताते रहे कि आपको भी उसी डेथ सेल में रखा। तो वो एक किस्म की जो जेल का जो फोबिया होता है, वहां पे जब आप एक आजाद मुल्क में आजाद शहरी होने के बावजूद एक किसी घुटन ज़दा माहौल में आते हो, तो ज़ाहिरी बात है वहां पे बहुत सी चीजें इंसान के माइंड में आती हैं। तो वो जो खौफ था ना, वो टूट गया है। ये जो खौफ का बुत था वो टूट गया है। ये अब गिरफ्तार करें, मारें, सीना हाजिर है, छाती हाजिर है, ये अब हक और सच की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। गौर कैसे देखते हैं कि आज जो है इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके साथ मुकदमात में उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन उनके जो फोटोग्राफर हैं नुमान जी, ऑफिशियल फोटोग्राफर, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और बेदर्दी के साथ जो है सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद है उन्होंने उठाया, और एक ने पकड़ी उनकी टांग और दूसरे ने उनके हाथों को पकड़ा और घसीट कर उसको लेकर गए। इसी की तरह उमर शहजाद हैं, उनको जो है वो पकड़ कर ले गए, पीटीए के 3-4 और लोगों को पकड़ कर लेकर गए। आज भी इनका प्लान था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करेंगे, लेकिन वो ज़मानत पर चले गए और पुरअमन तरीके से वो वापस चले गए। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जिस तरह ये बगैर किसी मुकदमे, बगैर कोई एफआईआर के आपके साथ भी ये वाक़या पेश हुआ, डेथ सेल में रखा गया, जो कि इंसानी हकूक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जी है, और बीइंग मुसलमान है, हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो ये कैसी ये फाशिस्ट गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम क्यों करती है और इनको इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो सरदार साहब ये नोट कर लीजिएगा कि जहां तक मेरे पास ये मोबाइल जराए हैं कि ये जो सिविल कपड़ों में मलबूस ये शख्स जो इस तरह का तशद्दुद कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून के जो हैं बताए जाते हैं कि जिस तरह आपने वो सुना होगा गुल्लू भट्ट जैसे लोग, ये इनके हैर किए हुए लोग हैं। और जहां तक ये इदारों की तरफ ये लोग हमेशा जब भी सिविल यूनिफॉर्म में किसी बंदे को कहते हैं, तो बेसिकली नून लीग ने वो करके दिखा दिया है जो अमेरिका आज तक नहीं कर पाया, जो इसराइल आज तक नहीं कर पाया, जो इंडिया हमारा मुखालिफ है, वो हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता, वो नहीं कर पाया।
वो सिर्फ और सिर्फ आज वो जो इतने बड़े दुश्मन ममालिक नहीं कर सके, वो मरियम नवाज ने करके दिखा दिया है। आज देखें पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम में इदारों की रिस्पेक्ट का जो सेंटिमेंट है वो भी देखें, और जो मोहब्बत पहले हुआ करती थी, क्या लोग वाकई वो मोहब्बत कर रहे हैं? तो ये जो मरियम नवाज साहबा हैं, इनके जो हुक्मनामे हैं और लंदन प्लान जो है वो कामयाब होता जा रहा है। और वो जो इसराइल नहीं कर सका कि अवाम के दिलों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, इदारों के खिलाफ नफरत भी पैदा की जा रहा है, तो ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ प्लान जो है वो इस तरह का जो हथकंडा यूज करते हुए अब इसराइल को भी जरूरत नहीं है, इंडिया को भी जरूरत नहीं है, और अमेरिका बहादुर को भी जरूरत नहीं है कि वो उनके जो फैसिलिटेटर है वो उनके जो गुलाम है। एक तैयब मैं आपको एक चीज में ऐड कर दूं कि जो हमें हथकड़ियां लगाएगी वो मेड बाय अमेरिका लिखा हुआ था उनके ऊपर। ये देखें, जो हम कहते थे कि हम कोई गुलाम है, तो वो उन्होंने गुलाम बना के दिखाया है कि आप अमेरिका के गुलाम हैं। हथकड़ियों के ऊपर लिखा हुआ था मेड बाय अमेरिका, मेड बाय यूएसए। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप जिस भी नौजवान को गिरफ्तार करते हैं उसको हथकड़ी भी अमेरिकी लगाई जाती है। दूसरी आपने बात की है कि आज फोटोग्राफर जो इमरान खान का पर्सनल फोटोग्राफर है उसको गिरफ्तार किए। मजम्मत करता हूँ ऐसे अच्छे हथकंडे की। मैं तो इस्लामाबाद पुलिस को बड़ा प्रोफेशनल पुलिस समझता था, लेकिन उनकी जो नाअहली, नालायकी और इस किस्म की जो वारदातें करते हैं, उनका असल भद्दा चेहरा जो है वो अयां होता जा रहा है। लोगों का ट्रस्ट पुलिस पे नहीं रहेगा। लोग अपने जस्टिस के लिए जैसे एतमाद रखते हैं। एक चीज तैयब मैं आपको बता दूं, अल्लाह के बाद ना अब पाकिस्तान के हर नौजवान का, हर शहरी का अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर यकीन है कि पाकिस्तान की अदलिया बहुत बड़े फैसले करेगी। और इन चोरों चकट्ठों का जो टोला है, 11 जमाती टोला, चाचू जो बाइडन के, ये ताए नाने चाचे दादे जो इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ने इनसे हिसाब लेना है। अगर ये इस दुनिया में हिसाब नहीं देंगे तो अल्लाह ने इनको इस दुनिया में भी दिखाना है कि आपका एंड कैसे हुआ, और आखिरत की अदालत में भी इन्होंने दिखाना है अल्लाह ने कि इनका ये जो भद्दा चेहरा है ना, ये झूठ बोलते हैं। मुझे ये बताएं, क्या मेरी गिरफ्तारी से पेट्रोल नीचे आ गया था? क्या मेरी गिरफ्तारी के बाद आटा सस्ता हो गया था? क्या आप मेरी गिरफ्तारी के बाद जो है गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल गई है? क्या आप मुझे ये बताएं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जो है IMF की डील हो गई है? ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि इस वक्त रियासत की जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप अपने खिलाफ जो मरियम के हुक्मनामे माने जा रहे हैं, आप अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करते जा रहे हैं। आवाम के और मेरे दिल में इदारों की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है और रहेगी, और हम इनकी रिस्पेक्ट को दूर नहीं करने, लेकिन इसमें जो काली भेड़े हैं, मरियम नवाज जैसी, राना सनाउल्लाह और लंदन से भगौड़े जैसे जो लोग बैठे हैं, ये जो किरदार अदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके किरदार को भी हम जो है वो अयां करेंगे और इनके अबहाम भी दूर करेंगे। आप कैसे देखते हैं, जिस तरह आपने भी कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं, जो केस है अब इंतखाबात का, वो अदालत में गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की। अब आप कैसा देखते हैं कि आज ये जो प्रोसीडिंग हुई है उसके जो रिमार्क्स वगैरह सामने आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की वायलेशन हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मना करेगा अपने जो आइनी फ़राइज़ हैं जो वो नहीं अदा कर रहा, ना हुकूमत अदा कर रही है, ना अदारे उस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कराने के हवाले से? तो अब लास्ट क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ मामलात जा रहे हैं और क्या फ़ैसला होने जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से? जी तैयब, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल के ऊपर हमारा भरोसा है, इंसाफ की आखिरी अदालत जो पाकिस्तान की आला अदलिया है और फाजिल जजेस हैं, वो आपने आइन की पामाली नहीं होने देंगे। और ये मैं भी बता दूं कि ये जो कर बैठे हैं इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, और वो पाकिस्तान के एग्जेक्टिव के ऊपर पहले जाता है। जो पाकिस्तान का एग्जेक्टिव चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन की वायलेशन हो रही है सरेआम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि जब एक सदर के हुक्म को वायलेट किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो के ऊपर जो है उनके जो आर्डर आते हैं, तारीख मिल जाती है, उसको वायलेट किया जा रहा है। और पैसे नहीं है, भिखारी हैं, मांग रहे हैं, पैसे नहीं है।
जी आपके पास ये प्रोटोकॉल, शाहाना प्रोटोकॉल, और आपके एयरफोर्स के जहाजों में, इश्तिहारियों में बैठाकर उसके फ्यूल के पैसे हैं, फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए आपके पास पैसे हैं, आपको सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए पैसे हैं, दुबई में आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास पैसे हैं। ये सारे पैसे ये हमने, देखिए 75 सालों से हम टैक्स पेयर हैं, अगर हमारे ही पैसों के ऊपर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर इनको अपने ओहदे से जाना चाहिए। और इस वक्त 24 करोड़ आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर रखे हुए है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि या तो इलेक्शन होगा, या ये जो जो इसमें कल्प्रेट लोग हैं इनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है वो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आर्टिकल 6 लगेगा तो आपका वजीर आजम अपने ओहदे से नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान क्या, मैं एक जनरल इलेक्शन देख रहा हूँ, जैसे ही आर्टिकल 6 आगे बढ़ेगा तो वजीर आजम को ओहदा छोड़ना पड़ेगा, और इसी तरह कौमी असम्बली टूटेगी, सूबाई असम्बलियां टूट चुकी हुई हैं, तो एक जनरल इलेक्शन की तरफ बात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुर साहब ये बताइएगा कि लास्ट क्या कहना चाहेंगे सच की तलाश प्लेटफॉर्म के हवाले से? तकरीबन हम 6 साल से काम कर रहे हैं, सच की तलाश हमारी टीम काम कर रही है, हक और सच की बात कर रहे हैं, हक और सच दिखा रहे हैं। हमारी टीम को क्या मैसेज आखिर में देना चाहिए? तैयब, मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, उस तरह आप एक नौजवान सहाफ़ी हैं और इस टाइम हक और सच की जो आवाज़ बुलंद की हुई है, आपने हक और सच का कलम हाथ में लिया हुआ है, और ये जिस तरह से आप कर रहे हैं, कौम आपको सलूट पेश करती है, और कौम की जो माएँ हैं वो हक और सच के दिखाने वालों के लिए झोलियां उठा के दुआएं दे रही हैं। और मैं आपकी टीम को और स्पेशल आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप ये सच दिखाएंगे तो ये मुआशरे का जो असल चेहरा है वो हम अपने कौम के हीरोज को दिखाएंगे, कौम के नौजवानों को दिखाएंगे हक और सच। तो ये एक बड़ी भरपूर कैंपेन है, और अल्लाह ताला आपको इसमें आसानियां दे, आपको इसमें मजीद हौसला दे, आपकी टीम को हौसला मिलना चाहिए, इसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए, जिस तरह से आप इसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म के तौर पे। एक कड़वा सच भी मैंने आपका एक प्रोग्राम आई थिंक कोई इस तरह का देखा था, या सच की तलाश, इस तरह का प्रोग्राम जो आप करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है, और लोग आपको इसी इसी तनाजुर में देखते हैं कि आप सच की तलाश में रहते हैं, खबर की डेप्थ तक जाते हैं, खबर के चारों कोनों को देखते हैं, फिर अपना जाके जो सच है, असल खबर जो है वो लोगों तक यहाँ करता है। ये पैगम्बराना जो आप फरैज अंजाम दे रहे हैं, यहाँ भी अल्लाह ताला आपको सुरखुर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी आखिरत भी सुरखुर होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर तहकीकी सहाफ़ी गौर सियाल साहब, जो कि अरेस्ट होने के बाद हमारे साथ फर्स्ट टाइम मौजूद थे सच की तलाश प्लेटफॉर्म में, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत पर और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो गौर साहब यही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंशाल्लाह वो हक और सच की आवाज़ को आगे लेकर चलेगी, और वो आइन को किसी सूरत भी पामाल नहीं होने देगी, और आइन पर हर सूरत अमल दरामद करवाएगी। गौर साहब ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 6 भी मौजूदा फाशिस्ट जो गवर्नमेंट है इस पर लग सकता है, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि नाम के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्योंकि लोगों को आटों को जो है वो वादे करते हैं, बड़े लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं आटों का बहाना करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी 5 रुपए का पेट्रोल नीचे लाते हैं और फिर जो है वो अगले दिन जो है 10 रुपए पेट्रोल और ज़्यादा कर देते हैं। तो आवाम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, ये कोई ऐसी की दिहाई तो नहीं है जो मर्ज़ी कर लें और जितना मर्ज़ी लोगों को बेवकूफ़ ना दे। अब लोगों में शऊर आ चुका है, और ये गौर सियाल साहब के आप जज्बात देख सकते हैं कि एक डेथ सेल में उनको रखा गया, और किस तरीके से अब उनके जज्बात पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हो चुके हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब उन्हें मार भी दिया जाए हक और सच से वो पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे। और सिर्फ ये कहा गया है कि आपको हमने इस वजह से गिरफ्तार किया क्योंकि आज हमने प्लानिंग बनाई हुई है, खान साहब को भी इसी जेल में लाएंगे और आपके साथ बिठाएंगे। तो इनकी ये इल्ज़ाम देखें कि गौर सियाल साहब को जब गिरफ्तार किया था इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, उस टाइम सुबह 10 का टाइम था, बिल्कुल हालात साजगार थे, कोई इस तरह का शैल वगैरह कोई ख़तरा नहीं था। और इनको क्यों गिरफ्तार किया? ये क्योंकि हाँ खुद सच दिखाते हैं, इनके पास कैमरा होता है और लोग इनको मिलियंस की तादाद में देखते हैं, क्योंकि ये कोई लफाफा साफ़ी तो है नहीं, हमारा काम है हक़ाइक़ दिखाना। तो पीडीएम वाले को ऐसे लोग चाहिए कि जो हक़ाइक़ न दिखाएं, जो उनके गुण गाते रहें और सारे जो है वो जंग एंड जियो कंपनी बन जाए और जो मर्ज़ी जो है वो करते रहें।
اور اس طرح کے صحافی تو ہم لوگ ہیں نہیں. ہم نے فیلڈ میں کام کرنا ہے. پی ٹی اے کی جب حکومت تھی انہوں نے منگائی کی تھی تو ہم نے الحمدللہ اسی پلیٹ فارم پہ دکھایا تھا. ہم نے اس ٹائم بھی تنقید کی تھی, عمران ریاض صاحب نے ایون کی تھی, سب کرتے تھے. لیکن جو انہوں نے آ کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ملک کو دیوالیہ پن پہ لے گئے ہیں, تو اب ہم ان پر تنقید کریں تو یہ کبھی پیمرا کو استعمال کر رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی صحافیوں کو گرفتار, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. اور گورسیال صاحب نے جو عمران خان صاحب کے پرسنل فوٹوگرافر ہیں نعمان جی, ان کی بھی مذمت کی, اور انہوں نے شدید الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ نعمان جی کو جو گرفتار کیا گیا انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, وہ بیچارہ ڈیوٹی میں ہوتا ہے, وہ خان کی فوٹوگرافر ہے, اس کا کام ہے فوٹو بنانا, اس کو گاڑی سے اٹھا کر گھسیٹ کر سول کپڑوں میں گلو بٹ, جو کہ ہم نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی دیکھے تھے, بڑے بڑے گلو بٹ ڈال دیتے ہیں, پولیس میں بھی انہوں نے گلو بٹ ڈالے ہوتے ہیں, اور پھر وہ لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی ایجنسی کا بندہ ہے یا اداروں اور تحریک انصاف میں لڑانے کی اور فاصلے بڑھانے کی نون لیگ کی جو سازش ہے, پورا ملک جانتا ہے کہ جو لوگ بڑے سازشی اور بڑے کرائم قسم کے لوگ ہیں, اور یہ کرپٹ لوگ ہیں, اور ان کی اسی طرح کی منفی پروپیگنڈا کر کے اور پھر فیکس اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جوڑا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں پاک فوج کے خلاف یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے یہی ہوتے ہیں, یہ گلو باٹ اینڈ کمپنی کر رہی ہوتی ہے, اور نام پہ ٹی اے کے لگا دیتے ہیں. اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے پروگرام سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ.